ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પ્રવક્તા આલોક શર્માની પત્રકાર પરિષદ ટૂંક સમયમાં વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ. વિધાનસભાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને યોજવામાં આવી પત્રકાર પરિષદ. ભાજપ સરકાર પર કર્યા આકરા પ્રહારો, વડોદરાના પ્રશ્નોની સમસ્યાની કરી વાત. શહેરને મળવાવાળો એમ્સ વિજય રૂપાણીને કારણે રાજકોટને મળ્યો. વડોદરામાં ડ્રગ્સ વેચાતું તેમજ બનાવટી ફેક્ટરી પકડાઈ. જીવાદોરી સમાન વિશ્વામિત્ર નદીઓને પ્રદૂષિત કરી રહી છે. આજુબાજુ કોન્ક્રીટના જંગલોને કારણે શહેરને પૂરનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકારમાં આવતાની ગ્રાન્ટમાં કરી રહ્યા છે ભ્રષ્ટાચાર. પાલિકા પર સાધ્યો નિશાનો, મેયર પર કરવામાં આવ્યા આક્ષેપો. ભ્રષ્ટાચારને કારણે શહેરને નથી મળી રહ્યું શુદ્ધ પાણી. ડ્રેનેજની સમસ્યાથી લોકો પીડાઈ રહ્યા છે. 40 લાખથી વધુ બેરોજગારો ગુજરાતમાં છે. કોંગ્રેસ દ્વારા કોઈ પણ આંદોલન કરવામાં આવે તો 144 કલમ અનુસાર અટકાયત કરવામાં આવે છે. એમએસ યુનિવર્સિટીના મામલે આપ્યું મોટું નિવેદન. કોઈ પણ પરમેનન્ટ કર્મચારી નથી. કોઈ પણ ટીચિંગ કર્મચારીઓ કાયમી કરવામાં આવ્યા નથી. ગ્લોબલ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટમાં ભારત દેશ પાછળ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી માફી માંગવી જોઈએ. કોરોનાના કાળમાં પણ સરકાર નિષ્ફળ નીવડી છે. પૂરતી સારવાર નથી આપી શક્યા. દર્દીઓને ઓક્સિજનની પણ સુવિધા પૂરી પાડી શક્યા નથી. એસએસસી અને યુપીએસસીમાં તાળા લાગવાનું કગાર પર છે. ગાયોના મોત પર પણ આપ્યું નિવેદન. લંપી વાયરસથી અને ગાયોના મોત નિપજ્યા છે. ભાજપના ઇશારે ઇલેક્શન કમિશન ચાલે છે. ભારત જોડો યાત્રા ચૂંટણીલક્ષી યાત્રા નથી, પદયાત્રા છે. પદનો રસ્તો મળે. સિક્યોરિટી પર્પઝના કારણે યાત્રા કરાય છે. ઈવીએમમાં જે રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ આદમી પાર્ટી ભાજપના ઇશારે ચાલે છે. મોટાભાઈ અને નાના ભાઈએ કીધું હતું 150 પાર સીટો લાવીશું. પરિણામ અલગ હતું. આ વખતે લોકો જાણી ગઈ છે ભાજપ પાર્ટીને. આપના નિવેદનોને ભાજપની મોનોપોલી છે. આપણી વચ્ચે આજે વડોદરા શહેરના મુખ્ય મહેમાન જે બન્યા છે એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઈએ. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઓલ ઇન્ડિયાના પ્રવક્તા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને જેમને ગુજરાત રાજ્યની જવાબદારી છે આપણા પ્રવક્તા શ્રી આલોક શર્માજી જે ઉત્તર પ્રદેશથી છે અને આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે અમારા મોટા ભાઈ અને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મીડિયા કોઓર્ડિનેટર ભાઈ શ્રી હેમાંગભાઈ રાવલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપણી વચ્ચે વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રભારી પંકજભાઈ પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. આપણા વડોદરા શહેરના પૂર્વ વિપક્ષ નેતા અને સિનિયર કાઉન્સિલર આદરણીય ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ ભથ્થુભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. વડોદરામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી અહીંયા કોઓર્ડિનેશન કરી રહ્યા છે જે એઆઈસીસી તરફથી કોઓર્ડિનેટર છે એવા પંકજ તિવારીજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. અને આજનો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એ વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે અને જે એનો મુખ્ય વિષય જે છે એ કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કારસ્થાન બોલે છે. એ મુખ્ય મુદ્દા પર આપણી વચ્ચે આલોક શર્માજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે જે આપણને સંબોધન કરશે અને ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્નોને જવાબ કરી શકીશું. लेकिन आज तमाम तरह की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की ग्रांट्स हैं या तो रुकी हुई हैं और अगर रुकी नहीं हुई हैं आती भी हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की पूरी तरह से भेंट चढ़ जाती है. उसी का कारण है कि मेयर के अपने वार्ड में भी लोग गंदा पानी पीने को, सीवेज का पानी मिक्स पीने के लिए जिस तरह से मजबूर हैं और जिस तरह से हैजा से मौत तक होती हैं. तो आज हम सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा से कि वडोदरा ने ऐसा क्या गलत किया था. वडोदरा के लोगों ने तो हमेशा आपको जिताया है, फिर आपने वडोदरा के साथ ये इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया. चाहे आप ड्रेनेज की बात देख लो, चाहे आप पानी की पीने के पानी की बात देख लीजिए, तमाम मुद्दों में. और इसके साथ साथ क्योंकि वडोदरा शहर पिछले 15-20 वर्षों में काफी बड़ा हो गया, ओएनजीसी और तमाम ओपेल और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर थी पहले से, तो उसकी वजह से जिस तरह का एक्सपेंशन हुआ उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो वडोदरा का बिल्कुल भी नहीं हुआ. और यही कारण है कि आज हर रेड लाइट पर आपको कहीं ना कहीं जाम नजर आता है. दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट के नाम पर पूरी तरह से आप कहीं पर भी किसी भी चौराहे पे चले जाइए, होमगार्ड के हमारे साथी खड़े दिखाई देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हमारे खड़े दिखाई देंगे, लेकिन परमानेंट रिक्रूटमेंट गुजरात के अंदर जिस तरह से बंद है और जिस तरह से तमाम पेपर लीक होते हैं, 22 से ज्यादा पेपर पिछले कुछ वर्षों में लीक हुए हैं,
इसका जवाब भी भाजपा सरकार को देना होगा। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, गौरव यात्राएं निकाली जाती हैं, महंगाई चरम पर है, 412 रुपए का सिलेंडर इन लोगों को महंगा लगता था और 1150 रुपए का सस्ता लगता है। जिस तरह से बेरोजगारी में आज से जिस समय पर मोदी साहब ने यहां पर कमान संभाली थी, उस समय पर लगभग 2 लाख बेरोजगार नवयुवक गुजरात के अंदर थे और आज 40 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार गुजरात के अंदर। और दुर्भाग्य है कि बड़ौदा तो अघोषित बंधक बना हुआ, अघोषित एक धारा 144 यहां पर लगी हुई है कि जिसकी घोषणा नहीं करनी पड़ती। हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, मेन कांग्रेस के साथी जब भी किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अघोषित धारा 144 से परमानेंट लगी हुई कि आप किसी तरह का धरना प्रदर्शन यहां पर नहीं करेंगे, आपको किसी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी और अगर उसके बाद भी आप करेंगे तो आपके ऊपर तमाम मुकदमे लाद दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा सूरत में तो 4 बच्चों के ऊपर, एक तरफ आप कहते हैं कि बहुत हमने विकास किया, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन देना 80 करोड़ लोगों को, ये कौन से विकास की निशानी है? भाजपा के लोग बताएं कि देश किस दिशा में जा रहा है। अर्थव्यवस्था का बंटाधार, विदेश नीति का बंटाधार, गुजरात में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर, नई किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट नहीं है, एसएससी और यूपीएससी पे ताला लगने के कगार पर है। जिस तरह से लगातार वहां पर वैकेंसीज घट रही है, अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जिस तरह से आर्मी में, डिफेंस में हमारे बच्चे जाते थे उनको रोक दिया, 4 साल की ठेकेदारी प्रथा पर ले गए। बैंकिंग में, रेलवे में, सब जगह आप देखिए क्या हालात हैं कि बेरोजगारी चरम पर। केवल भाषण देने से और देश में चीता ले आने से और ये बता देने से कि चीता जो है सबसे तेज भागता है, भाजपा वालों, इस देश का विकास नहीं होगा। चीता ले आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 लाख के करीब गाय मर गई लंपी से और आप लोगों ने 2 साल में एक वायरस तक का इजाद नहीं किया। तो आज वो गौ प्रेमी और पशु प्रेमी पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से हम कि क्या कारण है कि मोदी सरकार केवल और केवल हिंदू मुसलमान करने में, ऊटपटांग भाषण देने में और देश को विभाजित करने में जिस तरह से तमाम मुद्दों पर लगी हुई है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस बार मीडिया के साथियों के माध्यम से हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार, नोटबंदी पे अभी आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 दिन पहले सुनवाई हुई और आंकड़े मांगे गए, किसके ऑर्डर से, किसके आदेश से, क्या अर्जेंसी थी कि आपने क्यों नोटबंदी की, कितना काला धन आया, कितना पीला, कितना सफेद आया। तमाम मुद्दों पर एक तरफ कांग्रेस अधिकार देने की बात करती है, कांग्रेस सूचना का अधिकार देती है, शिक्षा का अधिकार देती है, फूड सिक्योरिटी बिल देती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों को अधिकार की बात करती है, चाहे वो 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, वोट का अधिकार 21 से 18 किया हो, कंप्यूटर क्रांति लेकर आए हों, शिक्षा में क्रांति लेकर आए हों। हमने हमेशा से लोगों को, जनता को उनके अधिकार देने की बात की है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो गुजरात में हो और चाहे वो केंद्र में हो, वो दमन की बात करती है, वो अधिकारों को छीनने की बात करती है।